In this video lecture, we are going to discuss following topics: definition of algorithm, categories of algorithm, characteristics of algorithm, advantages of algorithm, structure of algorithm, control structure, and its type. Now, first, we start the definition of algorithm. Now, how we can define algorithm? Algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task. These instructions are written in the specified sequence, then will get the required results. An algorithm can be implemented in more than one programming language. Now, this is the definition of algorithm. Now, what are the categories of algorithm? Now, first category of algorithm is search. Now, search an item in a data structure. Next category is sort. Now, to sort items in a certain order. Next category is a insert. Insert is to insert item in a data structure. Next category is update. Update is to update an existing item in a data structure. And the last category is a delete. Delete is to delete an existing item from a data structure. Now, these are the categories of algorithm. Now, what are the different characteristics of algorithm? Now, first characteristics of algorithm is unambiguous. Now, algorithm should be clear and unambiguous. Each of its steps or phases and their inputs or outputs should be clear and must lead to only one meaning. Next characteristic is an input. An algorithm should have 0 or more well-defined inputs. Next categories is output. Algorithm should have one or more well-defined outputs and should match the desired output. Next category is finiteness. Algorithm must terminate after a finite number of steps. Next is feasibility. It should be feasible with the available resources. And last category is independent. Algorithm should have step-by-step directions which should be independent of any programming code. Now, these are the characteristics of algorithm. Next is, what are the advantages of algorithm? Now, first advantage of algorithm, it is a plain English language. Second advantage is, it is a step-by-step representation of a solution to a given problem. Next advantage, it is easy to understand the logic. Fourth benefit, it is first develop an algorithm and then convert it into a flowchart and then into a computer program, that is called as a source code. Next benefit is a fifth, it is a independent of any programming language. Last benefit, it is a very easy to create a program. There are so many advantages of algorithm, but we will discuss here only few of them. Okay, and the seventh advantage is it is easy to debug and every step has got its own logical sequence. Now, these are the advantages of algorithm. Now, next very important part is the structure of algorithm. Now, we say, now this is a structure, this is a very simple structure of algorithm. Algorithm 1, purpose of algorithm and input data and variables used. Now, step 1 always start, step 2, then we write a statement according to your problem up to the step n, and the last step is a stop. Now, this is a small structure of algorithm. Now, here in this structure, the first part of algorithm is the purpose of algorithm. It lists for variables and input data. The second part is the list of steps. Step 1 is the start of algorithm and the remaining steps in algorithm are executed one after the other.
Control may be transferred to step n by using statement like go to step n. The stop statement completes the algorithm. The data may be assigned to variables by using read statement, and it is displayed by write or print statement. Now, a very simple example we discuss here, the addition of two number. Now the first step, this is the given problem is addition of two number. Now first we write algorithm 1, addition of two number. This is the problem. Now step 1, always start. Step 2, read the values of a and b. First we can input the two values. Now the first variable you have to define a, and second variable you have to define b. Now first we read both the value. Then in step 2 we read the value of a and b. Next then to add two numbers, then in third step we write sum a plus b. Now this is the formula for the addition of two numbers. Then step 4, display the sum of a and b are. Now if you add both the numbers a and b, then it will display the addition. Okay, now in step 4 how we can write like this here, display sum of a and b are equal to sum, because the result will store in sum. And last step 5 is a stop. Now to stop the algorithm. Now this is the second algorithm, largest among three different numbers. अभी ये जो algorithm हमको दिख रहा है, तो हमको तीन नंबर में से एक लार्जेस्ट नंबर हमको यदि फाइंड आउट करना है, तो हमको तीन नंबर्स के लिए तीन वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जिसको हम डिक्लेयर बोलते हैं. तो पहला स्टेप हमारा रहेगा स्टार्ट. सेकंड स्टेप हमारा रहेगा हमको तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है. कोई भी तीन वेरिएबल्स हम ले सकते हैं. हमने यहाँ इस एल्गोरिथम में ए बी सी ये तीन वेरिएबल्स लिए हैं. आप लोग पी क्यू आर ले सकते हो. ओके, तो स्टेप 2 में मैंने सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. डिक्लेयर वेरिएबल्स ए कॉमा बी एंड सी. स्टेप 3 में अभी हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों वेरिएबल्स में इनपुट करना पड़ेगा. मीन्स ए में वैल्यू एक इनपुट करना पड़ेगा, बी में करना पड़ेगा और सी में करना पड़ेगा. तो स्टेप 3 में हम लिखेंगे रीड वेरिएबल्स ए बी एंड सी, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनपुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. उसके बाद में स्टेप 4 में हम ए को चेक करेंगे बी के साथ में और ए को चेक करेंगे हम सी के साथ में. तो हम इस तरह से उसको लिखेंगे इफ़ ए ग्रेटर दैन बी एंड ए ग्रेटर दैन सी. ओके, हमने दोनों ए को बी के साथ में चेक किया है और ए को हमने सी के साथ में चेक किया है. यदि ए बड़ा होता है बी और सी में से, तो हमको डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले इज़ द लार्जेस्ट नंबर. यदि वो नहीं होता है, इसमें से एक भी कंडीशन यदि फॉल हो जाती है, यदि ए ग्रेटर दैन बी ये यदि फॉल्स हो जाता है, या तो फिर ए ग्रेटर दैन सी ये यदि फॉल्स हो जाता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन यदि फॉल्स हो जाता है, तो हम आएंगे एल्स इफ पे. और एल्स इफ पे आने के बाद में फिर अभी हम बी को चेक करेंगे ए के साथ में और बी को चेक करेंगे हम सी के साथ में. तो हम कैसे लिखेंगे एल्स इफ बी ग्रेटर दैन ए एंड बी ग्रेटर दैन सी. यदि ये दोनों कंडीशन यदि ट्रू होते हैं, तो हमको वो बी लार्जेस्ट करके बताएगा. ओके, और इसमें से सपोज दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन यदि फॉल्स हो जाता है, तो हम एल्स पार्ट पे आएंगे. तो सपोज ए बी लार्जेस्ट नहीं है, यदि बी भी लार्जेस्ट नहीं है, तो हमको फाइनली वो प्रिंट करेगा डिस्प्ले सी इज़ अ लार्जेस्ट नंबर. तो इस तरह से हमको लार्जेस्ट अमंग द थ्री डिफरेंट नंबर्स का एल्गोरिथम लिखना है. अभी हम थर्ड एल्गोरिथम देखेंगे, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर. अभी हमको किसी नंबर का यदि फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 4 का हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल आता है 24. तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24. तो 4 का फैक्टोरियल है 24 आता है. यानी कोई भी एक नंबर को इनपुट करने के बाद में हमको उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप 1 पे स्टार्ट करेंगे. फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमको एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है एम. हमको फैक्टोरियल का एक फार्मूला यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला लिखना पड़ेगा. तो उस फार्मूले में हम जो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, उन वेरिएबल्स को सबसे पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो हमारा फार्मूला इस तरह का रहेगा, फैक्टोरियल यानी हम एफ लेंगे. फैक्टोरियल के हमने फैक्टोरियल कंप्लीट ये वर्ड लिया है. तो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल स्टार आई, ये हमने लिया है. ओके, तो अभी ये जो हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है, आई जो वेरिएबल लिया हुआ है, तो इन सभी वेरिएबल्स को हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे. यानी हमको प्रोग्रामिंग में जितने भी वेरिएबल्स लेना है, सभी वेरिएबल्स को हम सबसे पहले उसको डिक्लेयर करेंगे. तो डिक्लेयर करते समय हमने एन लिया हुआ था, एन को हमने डिक्लेयर किया है. फैक्टोरियल ये वेरिएबल हमने लिया है, तो उसको भी हमने डिक्लेयर किया है. आई को भी हमने हमारे एल्गोरिथम में यूज़ किया है, तो हमने आई को भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है. तो इनिशियली सबसे पहले हमको फैक्टोरियल जो हमने फार्मूले में लिया हुआ है, यदि फैक्टोरियल को हम यदि जीरो रखते हैं, तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा जीरो आता है. इसलिए
इसलिए हम इनिशियली क्या करेंगे, फैक्टोरियल इस वेरिएबल में 1 करके असाइन करके रखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आएगा इनिशियलाइज वेरिएबल्स फैक्टोरियल इक्वल टू 1 एंड आई इक्वल टू 1। यदि आई को हम 0 लेते हैं तो हमारा रिजल्ट भी 0 आएगा, तो इसलिए हम इन दोनों वेरिएबल्स में सबसे पहले इनिशियलाइज 1 करके रख देंगे। हमको रीड क्या करना है, हमको एक वैल्यू इनपुट करना है, तो हमको एक वैल्यू इनपुट करने के लिए उसको रीड करना पड़ेगा। तो स्टेप 4 में हम लिखेंगे रीड वैल्यू ऑफ एन। ओके, अब ये जो एन वैल्यू है, ये एन वैल्यू हम आई के साथ चेक करेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन। सपोज यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया आई का वैल्यू 1 और एन हमने किया है 5, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गो टू स्टेप 7, यानी ये कंडीशन फॉल्स है तो स्टॉप हो जाएगा, बराबर है, यानी गो टू 7 पे चले जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसके बाद में यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, आई को एक से इंक्रीमेंट करते जाएगा एंड गो टू स्टेप 5 यानी फिर से वो कंडीशन में चेक करेगा। तो इस तरह से ये तब तक चलेगा जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। ओके, जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमको स्टेप 9 में वो फैक्टोरियल हमारा रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा और स्टेप 10 में वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। Now next very important part is a control structure of control structures. Okay, now how we can define control structure? A control structure is a block of programming that analyzes variables and chooses a direction in which to go based on a given parameters. The term follow control details the direction program takes. Now this is a very simple definition of control structure. Now there are the three different types of control structures. Now first way, sequential flow, that is called as a sequential logic. Second is a conditional flow, that is called as a selection logic. And third is a repetitive flow, that is called as a iteration logic. Now first we will go sequential flow. This sequential flow is composed of a series of statements which are executed one by one from top to bottom. Sequence is the default flow of control for many programming languages. In this sequential flow, the statements are executed one after another. The structure of sequential flow has the form. This is the structure of sequential flow. Okay, now statement 1 semicolon, statement 2 semicolon, up we use a number of statements, and last one is then the end of a flow. It means that you have to stop the statement. The next is a selection flow. Now this selection flow is known as the conditional control flow. This flow is used to test a condition. यानी ये जो फ्लो हम यूज़ करते हैं कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ देयर आर द थ्री कंडीशनल फ्लो स्ट्रक्चर्स। वन इज़ अ इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर, सेकंड इज़ अ इफ एल्स कंडीशनल स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज़ अ इफ एल्स कंडीशनल स्ट्रक्चर। हमने एक एल्गोरिथम देखा था लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स में, उसने हमने इफ एल्स इफ और एल्स इस कंडीशनल स्ट्रक्चर का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे शॉर्टली इसको देखेंगे कि इफ़ कंडीशनल जो स्ट्रक्चर है, इन द फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर हैज़ द फॉर्म इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। ओके, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यानी इफ़ कंडीशन, हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, जैसे ए ग्रेटर देन बी हमारा कंडीशन हो गया, देन यदि वो ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में वो स्टॉप हो जाएगा, मीन्स एंड इफ स्ट्रक्चर, यानी इफ स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ एल्स कंडीशनल स्ट्रक्चर। इन द सेकंड कंडीशनल स्ट्रक्चर हैज़ द फॉर्म, इसका जो फॉर्म होता है इफ कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे देन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2 एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है इफ, यदि हमको कंडीशन चेक करना है ए ग्रेटर देन बी, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। थर्ड जो स्टेटमेंट होता है इफ एल्स कंडीशनल स्ट्रक्चर, इसमें हम मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। इसके पहले वाला जो हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर देखा है उसमें सिर्फ सिंगल कंडीशन को हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड हमारे पार्ट में कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसमें हम मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। इन द थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर हैज़ द फॉर्म इफ कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट 1 एल्स इफ कंडीशन 2 देन स्टेटमेंट 2। यानी हमारे पास में यदि मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल कंडीशन को यदि हमको टेस्ट करना है तो हमारे लिए थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है इफ एल्स। ओके, तो इफ कंडीशन 1, यदि कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो फिर हम एल्स इफ कंडीशन 2 पे आते हैं, यदि कंडीशन 2 भी फॉल्स होता है फिर हम थर्ड कंडीशन लिखेंगे इफ एल्स कंडीशन 3, यदि फोर्थ भी कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो हम नेक्स्ट रहते हैं मल्टीपल कंडीशन को हमको टेस्ट करने के लिए हम इस कंडीशन स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यदि सभी कंडीशन फॉल्स होते हैं तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, एल्स पार्ट पे आएगा, और वहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे, एन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से हम इस कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट होता है रिपीटेटिव फ्लो। दिस रिपीटेटिव फ्लो इज कॉल्ड एज ए लूप और इटरेशन फ्लो। दिस फ्लो इज टू एग्जीक्यूट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सेवरल टाइम्स।
There are the three types of iteration structure. The first is while structure, second is a do while structure, and next is a for structure. Now अभी ये जो while structure हमको दिखा है, इसका जो फॉर्म होता है while condition then statement end of the while structure. तो while में कैसा है कि हमको लूप लेना है, जैसे हमको 1 to 10 नंबर यदि प्रिंट करना है तो 1 to 10 नंबर प्रिंट करने के लिए हमको ये रिपीटेटिव फ्लो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमको वाइल स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा. तो वाइल स्टेटमेंट में कैसा होता है कि पहला नंबर वो चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन टू अगेन ट्रू है तो फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा. तो ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, और जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वो लूप के बाहर आ जाएगा. तो उसके लिए हम वाइल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे. ओके, डू वाइल स्ट्रक्चर में कैसा होता है कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर वो कंडीशन टेस्ट करता है, और कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. ओके, पहले स्टेटमेंट में पहले कंडीशन टेस्ट होता है, उसके बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. तो ये थोड़ा रिवर्स है. तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो उसके लिए हम डू वाइल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट होता है फॉर स्ट्रक्चर. अभी फॉर स्ट्रक्चर में जहाँ पे हमको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, मल्टीपल कंडीशन को हमको टेस्ट करना है, हमको नंबर ऑफ लूप्स लेने हैं, तो उसके लिए हम फॉर स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. तो इसका एक सिंपल फॉर्म होता है फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट एंड एंड ऑफ द स्ट्रक्चर. तो these are the three repetitive flow conditional control structures. तो इस तरह से हम लूपिंग स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, और इसके जो एग्जांपल्स हैं आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उस वीडियो लेक्चर्स में हम डिटेल्स में देखेंगे. ओके, नेक्स्ट है कि देयर आर द